آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید کامران پیرزادہ اور آج آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ امہ چینل کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کے حالات کو، جس طرح بگڑتی بھی صورتحال ہے اور الیکشن کے بعد جس طرح لگتا تھا کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن حالات کچھ بہتری کی طرف جاتے ہوئے لگ نہیں رہے۔ عوام میں بھی تذبذب ہے، عوام لگتا ہے کہ مایوس ہیں، جس طرح پہلے پرانی حکومتوں سے مایوس تھے اسی طرح اس حکومت سے بھی مایوس ہیں۔ اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کو نواز شریف صاحب کو ووٹ دے کے منتخب کرایا تھا، انہی حلقوں میں دوبارہ سے ابھی حکومت بنے کچھ دن ہوئے ہیں اور دوبارہ احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا جب پوری قوم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی نام سے وابستہ ایک عمارت تھی اور اس کو دہشت گردوں نے گرا دیا، جس کو پوری قوم کیا پوری دنیا نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا، اور لوگوں کے جو دل ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، تذبذب کا شکار ہیں کہ اس سے پہلے جانیں جاتی تھی لیکن اب ان کے دل اور ان کے ذہنوں پر وار کیا جا رہا ہے۔ انصر اقبال بٹ صاحب، اب مجھے یہ بتائیے گا، جس سے پہلے ہم آپ کی طرف سوال کر رہے تھے کہ اب پوری قوم، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے، بد نصیبی یہ رہی ہے ہماری قوم کی کہ جب دوسرے ممالک، آپ امریکہ کی مثال لے لیں، آپ برطانیہ کی لے لیں، آپ دنیا میں اور بھی جن ممالک میں، جرمنی میں دہشت گردی ہوئی، اسپین میں ہوئی، آپ نے دیکھا کہ وہ قومیں، وہ حکومتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے دہشت گردی کو، میں سمجھتا ہوں کہ آہنی ہاتھوں سے کچل دیا۔ لیکن پاکستان کی قوم وہ واحد قوم ہے جس نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان اٹھایا۔ پاکستانی فوجیوں کے گلے کاٹے گئے اور ان کی باقاعدہ ویڈیو سامنے آئیں۔ پاکستان کی بچے مارے گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا، بچیاں اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے شہید کی گئیں۔ لیکن آج تک ہماری پاکستانی قوم ہے وہ کسی بھی اس بات پہ کم از کم متفق اور متحد نہیں ہو سکی۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیوں متفق اور متحد نہیں ہو رہے ہیں؟ پیرزادہ صاحب، بات آپ نے بڑی خوبصورت بھی کی اور بڑی دردناک بھی کی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، کہ واقعی یہ ٹھیک بات ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں، پاکستانی ہونا تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ جب ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بنے ہم، مالی جانی نقصان اٹھایا ہم نے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ جب وہ فلڈ آئے جی ہم قوم اکٹھی ہو گئی، ہم نے ان کی مدد کی اور ہم سارے اکٹھے ہو گئے اور ہم نے ان کی بحالی کے لیے بڑا کام کیا، بڑی مدد امداد بیرون ملک بھائیوں پاکستانیوں نے بھی کی، غیر مسلموں نے بھی کی، غیر پاکستانیوں نے بھی کی۔ لیکن اس بات پہ میں کچھ حد تک افسوس کے ساتھ متفق ہوتا ہوں کہ واقعی جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں پاکستانیوں کو کیا ہو جاتا ہے، کیوں ہر ایک بندہ مختلف موقف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں موٹیو دیکھیں جی، محرک کیا بنا ہے، کیوں وہ دہشت گرد۔ لیکن اس محرک کے علاوہ بھی پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا طبقہ، چاہے مذہبی لحاظ سے ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی ایسا طبقہ، آپ اقلیتیں دیکھ لیں، آپ مسلمان دیکھ لیں، پاکستان میں اقلیتوں کی جس طرح ان پہ حملے کیے گئے، ان کی عبادت گاہوں کو جس طرح مسمار کیا گیا، ان کی نشانیوں کو جس طرح، کوئی بھی ایسا طبقہ پاکستان میں نہیں ہے جو ان کا ڈسا ہوا نہ ہو۔ لیکن پھر بھی ہماری قوم ایک نقطے پہ ابھی تک متفق نہیں ہوئی کہ دہشت گردوں کو کچل دینا چاہیے۔ بالکل بالکل، میں اسی بات کے ساتھ افسوس کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اتنی مار کھانے کے بعد، اتنا نقصان اٹھانے کے بعد، یہ احساس ابھی تک پیدا نہیں ہوا کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، اکٹھے ہو کے ایک قوت نہیں بنیں گے، ہم اس بلا کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پاکستانیوں کو بلا تمیز رنگ و نسل اور مذہب تباہ کر رہی ہے، پوری دنیا میں ہمارا امیج گندا اور خراب کر رہی ہے۔ اس بلا سے چھٹکارا پانے کا صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم متحد ہو جائے اور اس بات پہ ڈٹ جائے کہ دہشت گردی کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں قابل برداشت نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کسی بھی صورت میں ہماری قوم کو برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی ہی خوبصورت ایک بات کر رہے ہیں انصر اقبال صاحب، لیکن ہمارے ساتھ ایک ہمارے معزز کالر موجود ہیں، عبدالقیوم صاحب۔ قیوم صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں مہمانوں کو سلام۔
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, बात यह है कि ज़बानी जमा खर्च करना, हवा में माल बनाना, ऐसी बातें हमारी कौम कर रही है। ये जो बात है टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, ये मसल्ला अफवाज का काम होता है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है। सिविल लोग हम आप नहीं लड़ सकते। ये वो प्लानिंग की जाती है, फौज प्लान करती है, या आपकी पुलिस प्लान करती है, या आपके जैसे रेंजर्स हैं जो आधी फौज होती है, ये सारे मिल के टेररिज्म को कुचलते हैं। आप देखें श्रीलंका छोटा सा मुल्क था, कितने साल वो वहां पे तमाशा बना रहा, आखिर उसकी फौज ने उनको कुचल के रख दिया। अभी अफसोस का मकाम है कि आपकी फौज भी कम नहीं है, आपकी पुलिस भी कम नहीं है, आपके जो वो क्या कहते हैं सेमी आर्मी जो होती है, जो अदारे होते हैं, इक्विप्ड अदारे जो होते हैं जैसे रेंजर्स हैं, समथिंग लाइक दैट, ये भी कम नहीं है। आखिर वजह क्या है कि हम 15, 20, 40 हजार बंदों को काबू नहीं कर पाए। इसमें मैं साहब आपकी बात काटूंगा माजरत के साथ, बड़ी खूबसूरत बात आप कर रहे हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आप ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हेड है, जो इस वक्त अनाने हुकूमत जिसने संभाला हुआ है, वो पार्टी और वो लीडर ये कहते हैं कि हम इन दहशतगर्दों के साथ सुलह करेंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो इन बातों के होते हुए आप आर्मी से या सिक्योरिटी अदारों से कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो इनको एक तरफ फेंक के वो आगे जाके इनसे जंग लड़ना शुरू कर दें? मैं बताऊं कि जो लोग टेररिस्ट जिन्होंने कम से कम 40-50 हजार आदमी मारा है, और आप देखें अभी जो कायद आजम जो थे उनकी रेजिडेंसी पे अटैक हुआ, ये सबसे बड़ा अटैक मैं समझता हूँ। पाकिस्तान के एक फादर जो था जिसने मुल्क बनाया, उसके घर को भी, उसकी भी घर को जाके मारा। तो इसका मतलब कल उनके मजार को भी अटैक करेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। ये आप याद रखें, जब भी उनको चांस मिला वो ढूंढते रहते हैं कहीं कमजोरी मिले। आप आर्मी हेडक्वार्टर GHQ पे अटैक हुए, आपके कामरा पे अटैक हुए, आपके नेवल पे अटैक हुए, आपके एयरफोर्स पे अटैक हुए, शर्मनाक बातें हुई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आपके 4 जनरल जिन्होंने 4 स्टार लगाए हुए हैं, उनको कुछ अंदर महसूस नहीं हुआ ये क्या हो रहा है मुल्क में। ये आप लोगों ने जो 1 मिलियन फौज रखी हुई है, ये क्या सिर्फ निशाने के तौर पे रखी है, ये इसको इस्तेमाल करने के लिए रखी है? आपका मुल्क कमजोर हो गया, आपके लोग मर रहे हैं, कोई हिल चाल नहीं हो रही। तो ये आपका जो हेड ऑफ स्टेट होता है, बजाय इसके कि टेररिस्ट के साथ बात की जाए, उनको कुचला जाए। जैसे सांप की मिसाल होती है, मैं देता हूं कि अगर सांप को छोड़ दिया जाए तो वो हर बंदे को डसेगा, अगर आप उसको पकड़ के कुचल देंगे तो दोबारा वो डसेगा नहीं। ये वो सांप है जो घर घर में घुस गए हैं। आपने अपनी मसल्ला फौज को इस्तेमाल करके इनको घर घर से ढूंढना है और इनका सर कुचलना है, तब आपके लोग 18,000 अमन से रहेंगे। वरना मैं चाहता हूं कि जनरल कैनी को रिप्लेस करें। मैं दावे से कहता हूं कि जब से जनरल कैनी पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों और फौजियों ने जो जलालत देखी है वो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिली। आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा बनाए जो स्ट्रांग किस्म का आदमी हो और फिर फौज को इजाजत दें कि इनको कुचला जाए। 3 महीने के अंदर मैं कहता हूं ये इनके बच्चे भी भाग के चले जाएंगे पाकिस्तान से। बड़ा शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत बात की और अपने जज्बात का इजहार किया अब्दुल कयूम साहब ने। जिस तरह की वो बात कर रहे हैं मुंसफदार मिर्जा साहब के जनरल क्यानी को उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहते हैं कि अगर इसको हटा दिया जाए, लेकिन मैं नहीं समझता, मेरा जाती तौर पे अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसका मोराल जनरल क्यानी की वजह से बुलंद हुआ है, क्योंकि उसने अपनी फौज को एक मुनज़्ज़म तरीके से रखा और उसके अलावा उसने सियासत में जो एंट्री नहीं करने दी अपने अफसरान को, या खुद इंटर नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, अवाम के लिए बड़ी एक खूबसूरत मिसाल थी। आप क्या कहते हैं कि इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए या इन्हें कुचल देना चाहिए? देखें जी, एक्सक्यूज मी, ये जो टेररिस्ट दहशतगर्दी है, मैं इसको को ई हमा अवुर्दा तूस्त, इसको हम लोगों ने परवान चढ़ाया है। पाकिस्तान की असम्बलियों में जाने वाले लोग खिदमत खल्क की बजाय दहशत की वजह से अपने वोटरों से दहशत की बुनियाद पर असम्बलियों में जाते रहे हैं, और दहशत हमारी सोसाइटी का एक कल्चर, एक हिस्सा बन गया हुआ है। अगर ये जो इस वक्त नुमाइंदगान हैं, अगर इन्हें अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी का इल्म हो और वहाँ के सब लोगों को ये जानते हो, तो
हर आदमी को पता, एक कंस्टिट्यूएंट का जो सरबराह होता है उसको पता होता है कि किस किस जगह किस किस किस्म के लोग कमाश रहते के हैं, किस लोग तरह के, हैं हाँ। और कहाँ से बदी सर उठा रही है, और उसको सर उठाते ही निप द इवल इन द बड, कि जब कोई बदी सर उठा रही हो उसी वक्त उसका सर बल्कि आप तो इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कहती हैं। मेरा तो जाती तौर पे ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने थाने हैं उनके जो SHO साहिबान हैं उनको भी मालूम होता है कि उनके इलाके में चर्स कौन पीता है, चोरी कौन करता है और शराब कौन फरोख्त करता है। लेकिन असल जिम्मेदारी थानेदार की नहीं होती, असल जिम्मेदारी इन लोगों की होती है कि इन्हें पता होना चाहिए कि किस जगह किस किस्म का किस कमाश का आदमी है और किस तरफ से बुराई जो है वो सर उठा रही है। इन लोगों ने खुद शुरू से पाकिस्तान के अवाम को, चूंकि सरदारों ने, नवाबों ने, जगीरदारों ने आम आदमी को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर, डरा कर, धमका कर ये असेंबलियों में जाते रहे हैं, और आज वो दहशत जो है वो पूरे एक अजदहा की सूरत इख्तियार कर गया, जो पूरे पाकिस्तान को निगलने जा रहा है। इसलिए इन लोगों को अपनी, सबसे पहले जो पाकिस्तान की असेंबलियों में लोग गए हुए हैं उन्हें अपनी सलाह करनी चाहिए। उन्हें जो ये पैसे के ज़ोर से, बरादरी के ज़ोर से और मनफी रवैयों की वजह से सियासत में आगे बढ़ते रहे हैं, मुस्बत रवैयों से अवाम की खिदमत करके, अवाम का ख्याल करके, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को सामने रख कर ये आगे नहीं बढ़ते रहे। लेकिन जब तक ये मुस्बत वैल्यूज़ को परवान नहीं चढ़ाएंगे और अपने अंदर उनको जगह नहीं देंगे, उस वक्त तक ये दहशतगर्दी का अजदहा जो है ये इनको नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारे सारे मेहमान ये कह रहे हैं नाज़रीन कि जब तक ये कौम मुत्तहिद नहीं होगी उस वक्त तक दहशतगर्दी का जो अजदहा है इसको कुचला नहीं जा सकता। इस सबसे पहले हम सबको इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। हम इसी बात को शेयर करते हैं अपने एक निहायत खूबसूरत कॉलर के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम खान साहब। एम खान साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा कि पीरे कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। आज वो मुसलमान नहीं रहे, हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं। हमें जो हमारी ड्यूटी थी उस ड्यूटी से लीडर भी, पीर भी, फकीर भी, जितने हमारे रहनुमा थे, जितने भी रहनुमा थे वो सारे के सारे वो सब फिर चुके हैं। मैं अपने इलाके से एक दफा आ रहा था तो आर्मी वाला एक रास्ते से मुझे मिल गया बस में। तो जब बस में जो आया तो कहने लगा किसी के पास कोई ऐसी, मैं तलाशी लूंगा, किसी के पास कोई ऐसी बात होगी तो मैं तलाशी लेना चाहता हूँ। जिस वक्त वो ऐसी जगह में लाया जहाँ उसको नहीं लाना चाहिए था, वो जब जिस वक्त नीचे टलने लगा तो उसको याद आई कि मैंने चेक करना था। तो मेरे करीब एक आपकी तरह नौजवान बैठा हुआ था। मैंने कहा कि ये इंडिया को जासूस तो नहीं है ये आर्मी वाला। उसने कहा जनाब ऐसी ना कि ये पाकिस्तान में हमारे इलाके में इसी को सिक्योरिटी कहते हैं, इसी को चेक कहते हैं। और दूसरी बात है करना, वरना हम सबको अंदर ये ढका देगा आर्मी वालों से मिलकर। तो ये असल में वजह यह है कि हमारी कौम को जितने हमारे पुलिस वाले हैं, कोई कहता है फलां शख्स को तब्दील कर दो, कोई कहता है फलां को तब्दील कर दो। असल ये नहीं कहते कि हमें क्या तब्दील होना चाहिए, बजाय हम दूसरों को तब्दील करने के लिए। यहाँ का आपने देखा इस मुल्क का कोई आदमी है कभी आर्मी के खिलाफ नहीं बोलता। एक वाहिद मुसलमान कौम है जो जिसको मेरी तरह अपना नाम भी नहीं आता, वो भी आर्मी के खिलाफ बोलता है, वो भी तो चांद सितारों की बातें करता है, हालांकि जमीन की उसके खबर नहीं है, लेकिन चांद सितारों की बातें करता है। जिस वक्त सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तरह कौम घर से सियासी, समाजी, दानश्वर सब घर से बाहर निकलकर अल्लाह की पाक बारगाह में तौबा करें। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खूबसूरत बात आप कर रहे थे। इसी तरह के हमारे मुल्क में हालात हैं, हम देखते हैं, इसी तरह के हालात हमारे सामने आते हैं। हम बहुत सी और भी बातें डिस्कस करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।